کیا جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو کیا کر سکے، محفوظ کر سکے. یہ اس لیے ہوتی ہے. لیکن بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ جو ڈھال ہے، وہ جو سپر ہے، وہ تیرا ایمان ہے. وہ تیرا کیا ہے؟ ایمان ہے. مطلب آپ کس میں ہو؟ آپ میدان جنگ میں ہو. میدان جنگ میں تو ہو، لیکن کیا آپ کا ایمان ہے؟ کیا آپ کے پاس ڈھال ہے؟ اب آپ وار تو کر رہے ہیں، آپ کے پاس راستہ بازی، تو آپ کو دھیان سمجھنا ہے، آپ کے پاس تلوار ہے، لیکن ابھی آپ کو تلوار دی نہیں گئی. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ تلوار کیا چیز ہوتی ہے. لیکن مان لو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس وہ ڈھال نہیں ہے جس سے آپ کے اوپر وار کیا جائے گا. اور آپ لڑ تو رہے ہو، لیکن آپ کے پاس تیروں کو روکنے کے لیے، کسی کے وار کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ان کے پاس ان کی جدت بڑھنے کے بعد ان کے پاس ریفل آ گیا، ان کے پاس میزائل آ گئے ہیں، ان کے پاس اور بہت کچھ آ گیا ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں سوائے اسرائیل کے، سوائے بنی اسرائیل. ان کے پاس ایسے راکٹ ہیں کہ اگر کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے تو ان کے پاس ایسے راکٹ ہیں کہ ان کو روک سکتے ہیں جدت بڑھنے کے بعد. لیکن پرانے ٹائم میں، لیکن آپ کے پاس ایک فیتھ ہونا چاہیے. آپ بیٹھے جہاں، اب ہمارا میدان جنگ کیا ہے؟ دعا میں بیٹھے ہو، ایمان ہے. دعا میں بیٹھے ہیں، لیکن کیا فیتھ ایمان سے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ ایمان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا میدان جنگ کمپلیٹ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم خوشخبری بھی سناتے ہیں، ہم راست بازی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، تو پھر آپ میدان جنگ میں فیل ہو جاؤ گے. کہیں نہ کہیں آپ کو تیر. اب دیکھو وہ جو ایمان ہے، وہ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتا، کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے اوپر اب جب حملہ ہوگا تو وہ ایمان آپ کو بچا سکتا ہے، وہ ایمان آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اس لیے ہمیں دعا میں بیٹھے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا میدان جنگ دعا ہے، اور دعا میں ہی ایمان نہیں ہے. جس سے مانگ رہے ہو، کیا امید ہے؟ کیا فیتھ رکھتے ہو؟ کیا ایمان رکھتے ہو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کیا وہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت ہے کہ وہ تمہیں دے سکتا ہے؟ جو اس سے مانگ رہے ہو، کیا وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ میدان جنگ میں تو ہیں ہم. میدان میں آپ یہ سب کچھ کرو یا نہ کرو، آپ خوشخبری بھی بے شک نہ سناؤ، اچھے کام بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، لیکن میدان جنگ میں آپ کو ایک ہر وہ کرسچن میدان جنگ میں ہے، لیکن اس کو وہ مار بھی دیا جا سکتا ہے، وہ اس کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے، وہ قتل بھی ہو سکتا ہے. اب ایک شہید ہو رہا ہے اور ایک قتل ہو رہا ہے، فرق ہے نا؟ ایک فرق ہے. وہ اس لیے فرق ہے کہ ایک اپنے برے کاموں کی وجہ سے جو قتل ہوگا وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہوگا، لیکن جو شہید ہوگا وہ کسی کے لیے ہوگا، وہ اپنے خدا کے لیے ہوگا، اپنے معبود کے لیے ہوگا، اپنے جیسس کرائسٹ کے لیے ہوگا. اس کو ہم شہید بولیں گے. لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس سپر نہیں ہے. داؤد کہتا ہے میری سپر خداوند ہے. اب داؤد کا اتنا بڑا فیض ہے، اتنا وہ ایمان ہے، کہتا ہے میرا ایمان بھی خدا ہے، میری صفت، مطلب میرا ایمان یہ ہے کہ خدا میرا ایمان ہے. مطلب ایک میں حیران ہوں کہ داؤد کے الفاظ کیا ہے. پھر کہتا ہے میری صفت خدا کے ہاتھ میں ہے، میرا ایمان بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ سب کچھ اپنے خدا پہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے میرا ایمان بھی خدا ہے، میری صفت بھی خدا ہے، سب کچھ خدا ہی ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اس کو کہاں سے نکالا. اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب جاتی جرت کے سامنے اس نے جانا تھا. یہ تب کی بات ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میرا خدا مجھے شیر سے بچا سکتا ہے تو میرا خدا اس چولیے سے بھی مجھے بچا سکتا ہے. یہ اس کا ایمان ہے. کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرا
खुदा मुझे बचा सकता है, मुझे गरीबी से निकाल सकता है, मुझे बीमारी से निकाल सकता है, मुझे औलाद दे सकता है, मुझे बेटा दे सकता है, मुझे बेटी दे सकता है, मुझे कारोबार। अगर आपका ईमान है तो वो खुदा आज करने को है। आमीन। वो आज आपको करेगा, आपकी जिंदगी में अच्छे तौर से काम करेगा। दाऊद कहता है मेरी सिर पर मेरा खुदा है, मेरी सिर पर मेरे खुदा के हाथ में है। अगर उसका ईमान था तो उसने करके दिखाया था। वो कहता है कि शेर से मुझे बचा सकता है खुदा, भालू से बचा सकता है। वो निकला, उसने अपने हाथ में कोई कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसका मैदान जंग कुछ और था। वो खुदा की हजूरी में ऑलरेडी बैठा हुआ था। जब निकला हाथ में पत्थर लिए, उस झोले को मारा तो उसने पता पाई। हालेलुया। उसको पता पाई, क्योंकि उसका ईमान था कि मैं ये पत्थर लेकर जाऊंगा, मैं रब्बुल फौज के नाम से उस पे वार करूंगा तो वो झोले को मार देगा। ये उसके अंदर ईमान काम कर रहा था, उसके पास ढाल थी। हम दुआ कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं, खुदा को कुछ देते हैं, ईमान से दो। पूरे फेथ के साथ नहीं ये काम करेगा। ईमान से, अगर आप ईमान के साथ चलेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं शक है, तो फिर काम नहीं होगा। चलो इन्हें भी दुआ करवा लेते हैं, समझ रहे हैं? चलो इनसे भी दुआ करवा लेते हैं, चलो उनसे भी दुआ करवा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमी आ रही है। आप जब चर्च जाते हैं तो बड़े फेथ के साथ जाते हैं। आप जब किसी को बुलाने जाते हैं तो बड़े फेथ के साथ जाया करें कि नहीं, मैं इस बहन को बुलाऊंगी, मैं इस बहन के घर जाऊंगी, मैं इसे कहूंगी कि यीशु तेरी खातिर मर गया। मैं फलां भाई के पास जाऊंगा, मैं फलां हमारा हमसाया है, वो यीशु मसीह को मानते हैं पर चर्च नहीं जाते। ईमान से उसके घर में जाए, उसे दावत दें, वो आएगा। आज कल परसों एक दिन आएगा, क्योंकि आप इस ईमान से जा रहे हैं कि नहीं, वो आएगा। लेकिन हमने ईमान बनाया होता है, नहीं ये नहीं आना, आज सब इतना नहीं आना, ये बहुत ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया इतने खतरनाक साइड पे जा रही है कि खुदा ऐसे माहौल बना रहा है और लोगों को खींच रहा अपनी तरफ। इतनी बड़ी बेदारी कभी भी नहीं थी जबकि अब बेदारी आ चुकी है। अब आपके बच्चे भी मौका ढूंढते हैं उन्हें खुदा का काम करने को मिला जाए। लेकिन कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। इसका मतलब यह है कि कोई कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, और वो जो हो रहा है उसे समझने की जरूरत है। उसका हिस्सा बन सकते हैं आप लोगों तक जा सकते हैं, और बड़े ईमान के साथ, क्योंकि आपका खुदा कहता है जाओ और मैं दुनिया के अव्वल तक तुम्हारे साथ हूं। क्या ईमान है? क्या आप जा रहे हैं? आपको बताऊं, पुराने टाइम में खुदा का रूह नबियों के ऊपर ठहरता था जब जरूरत होती थी, लेकिन अब ये है कि खुदा का रूह ठहरता नहीं है। कहता है मैं अब तुम्हारे अंदर रहूंगा। क्या आप जब ड्यूटी पे जाते हैं खुदा का रूह आपके साथ नहीं है? क्या जब आप अकेले अपने रूम में हैं तो खुदा का रूह आपके साथ नहीं है? थोड़ा सा और पे कहना चाहता हूं, क्या जब हम वॉशरूम में हैं, क्या वहां पे खुदा का रूह हमारे साथ नहीं है? वो हमारे अंदर है। क्या जब मैं चर्च में बैठा हूं तो खुदा का रूह मेरे साथ नहीं है? क्या जब मैं गाड़ी में बैठा हूं या बैठी हूं तो वहां पे खुदा का रूह नहीं है? लेकिन अगर मैं गलत जगह पे चला गया तो खुदा का रूह मेरे साथ नहीं होगा, वो उठ जाएगा मुझसे। अब दोबारा जब मैं बताऊं, जब पाक हुआ था ना, तो एक बड़ा तूफान आता है। पता चलता है लोगों को इसकी जिंदगी में पाक हुआ है, लेकिन जब वो जाता है तो तब आपको भी नहीं पता चलता वो गया कि नहीं गया। लेकिन जब काम नहीं ना होता फिर महसूस होता नहीं, लगता है खुदा का रूह नाम नहीं। आप जब काम करेंगे, जब प्रचार करेंगे, जब दुआएं करेंगे किसी के लिए, काम नहीं होगा, फिर फीलिंग अंदर आएगी, नहीं अब खाली खाली नजर आएगा आपको। लेकिन वो निकलेगा जब आपके अंदर से, तब मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए खुदा के लोगों, आप
इतनी बड़ी तसल्ली के साथ निकला करो कि जहां जहां भी आप जा रहे हो खुदा का रूह अपने साथ साथ जा रहा है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, किसी भी कारोबार में हाथ डालने जा रहे हो, खुदा का रूह आपके साथ है। अगर वो आपको मिला हुआ है तो खुदा आपके साथ है, खुदा के साथ है, ईमान के साथ। लिखा है खुदा ने इब्राहिम को उस मुल्क से निकाला। खुदा कहता है इब्राहिम मैं तेरे साथ हूं, यहां से निकल, इस मुल्क से निकल, अपने खानदान से निकल। इब्राहिम खुदा के साथ निकल पड़ा और अकेला निकला है, अपने बच्चों को साथ लिया है, अपने भतीजे को साथ लिया है, कोई बहुत बड़ा टब्बर साथ नहीं लिया, सिर्फ चंद लोग लिए और चला गया। चंद लोगों से मैं मुराद ले रहा हूं कि उसने लूत को अपने साथ लिया और उसके साथ उसके सारे नौकर थे, सिर्फ रिश्तेदार सिर्फ एक लूत ही था जिसको ले जाना नहीं था, लेकिन वो ले गया। आगे चल के हम सीखते हैं कि खुदा उसको 15वें बाब में गया है। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और फरमाया इब्राहिम मत डर, मैं तेरी सिपर हूं। खुदा इब्राहिम को कह रहा है मैं तेरी सिपर। इसलिए खुदा से कह रहा है कि उससे पहले उसके भतीजे को, जब वो उससे जुदा हो गया था, भतीजे को छुड़ाने जाता है, उसके दुश्मन उसे ले जाते हैं। लेकिन जहां पे इब्राहिम है, जहां पे लूत है ना, जहां पे लूत है वहां पे उसके अपने लोग हैं, जहां पे इब्राहिम है वहां पे भी अपने लोग नहीं है। लेकिन फिर भी इब्राहिम जाता है, खुदा उसे बता देता है और खुदा उससे कह रहा है कि, और इब्राहिम अपने दिल में सोच रहा था खुदा मेरे तो कोई इस इतना बड़ा तूने सब कुछ दिया है, इसको संभालने का कौन? खुदा कहता है मैं तेरी सिपर हूं, मुझ पे ईमान रख। खुदा कहते हैं मैंने कैसे, देख वहां पे तेरे रिश्तेदार थे नहीं, जहां पे लूत को वो बादशाह पकड़ के लेके गए, तेरे साथ तेरे रिश्तेदार थे नहीं, फिर भी मैंने तुझे वहां पे फतह दी, कामयाबी दी। और वहां पे कोई एक बादशाह नहीं था, बहुत सारे बादशाहों ने मिलकर ये सारी गड़बड़ की। लेकिन खुदा वो इब्राहिम के साथ गया और इब्राहिम उस वक्त बड़े फेथ के साथ गया। और खुदा, मैं बताऊं इब्राहिम का थोड़ा थोड़ा करके फेथ बढ़ा था। एकदम से इब्राहिम का ईमान नहीं मजबूत हुआ था कि अब वो बेटा लेने के काबिल हो चुका था। थोड़ा सा ईमान बढ़ा, इब्राहिम खुदा के साथ चलना शुरू हुआ। फिर ईमान बढ़ा, नहीं कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं है, खुदा अगर मुझे वहां से निकाल के यहाँ पे जंगल बियाबान में गैर कौमों में लेकर आया, खुदा मेरी हिफाजत कर है। और अब मैं अगर अपने दुश्मन से लड़ने जाऊंगा तो खुदा तब भी मेरी हिफाजत करेगा। ये उसके अंदर ईमान चल रहा था। लेकिन ईमान आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसका ईमान मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे खुदा उसकी जिंदगी में काम करता जा रहा था, उसका ईमान मजबूत होता जा रहा था। लेकिन लड़के के लिए उसका ईमान थोड़ा सा फिर डोल गया। कहता खुदा देख इतना कुछ तूने दिया है, कैसे कौन संभालेगा? मुझे लगता है मेरे नौकर इसको संभालेंगे। खुदा कहता नहीं इब्राहिम, तेरे सुलभ से लड़का पैदा होगा, तेरा ही खून होगा, वो तुझ ही से पैदा होगा, मैं तुझे लड़का दूंगा। खुदा कहता है छोड़ सब कुछ बाहर। खुदा उसे समुद्र के किनारे ले जाता है, इब्राहिम देख ये रेत उठा, इसे चुन, गिनती कर, एक मुठ अगर एक मुठ अगर आप उठा ले तो मुझे लगता है आपको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे उसको गिनने में कि कितने सरी हैं। खुदा कहता है गिन। शायद हो सकता है इब्राहिम ने गिनना भी शुरू कर दिया, हो सकता है इब्राहिम ने उन तारों को गिनना शुरू कर दिया हो। इसका मतलब है कि रात को वो रेत गिन नहीं सकता। इसका मतलब खुदा उसे दिन को लेके गया होगा कि दिन को ये गिनती कर, और फिर रात को जब वो चांद सितारे निकले, खुदा ने कहा इनको गिन। और ऐन मुमकिन जब वो ये सवाल कर सकता है कि खुदा तूने मुझे क्या दिया, तो वो गिन नहीं सकता होगा। जब इधर से गिनती करते करते उसकी गिनती खराब हो गई होगी ना, वो फिर कहता खुदा मैं गिन नहीं सकता। और उसका ईमान मजबूत होता गया और इतना मजबूत हो गया, खुदा ने जब उसको बेटा दिया, खुदा कहते ये लड़का मुझे वापस कर। इसका मतलब है कि इब्राहिम का ईमान आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया, बढ़ता गया और इतना मजबूत हो गया, उस खुदा पे इतना यकीन हो गया, कहता खुदा ठीक है। कोई सवाल अब इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया,
लेकिन उससे पीछे इब्राहिम थोड़े थोड़े हमारी तरह सवाल और जवाब करता गया, खुदा कैसे होगा, खुदा ऐसे नहीं हो सकता, खुदा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमारी तरह। लेकिन जब उसे लड़का मिला तो उसके बाद उसका ईमान 1% जिसे बोलते हैं ना, वो भी कमजोर नहीं था। अब उसका ईमान 100% खुदा के ऊपर भरोसा आ चुका था। कहता खुदा ने कहा ये अपने लड़के को मुझे कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने अपने लड़के को लिया, लकड़ियां ली और आग ली और उसे गधे पे रखा और चल दिया, जो मंजिल खुदा ने बताई। आपको बताऊं, उससे पहले अब इब्राहिम को समझ आ गया था, नहीं खुदा बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो कहते हैं खुदा मूर्तों से जलाने की कुदरत रखता है। मैं आपको बताऊं, खुदा ने उसके बेटे को महफूज रखा। अगर खुदा इब्राहिम के बेटे को महफूज रख के उसकी जगह पे कुर्बानी खुदा ने गुजरान दी, और मैं बताऊं अगर खुदा उसके लिए इतने बड़े काम कर सकता है, खुदा मेरे लिए भी कर सकता है। अगर खुदा इब्राहिम को आज बेटा जो आज हम सुन रहे हैं दे सकता है, तो वो बेटा आपको भी दे सकता है, वो बेटी आपको भी दे सकता है, वो कारोबार आपको भी दे सकता है, वो सब कुछ आपको देने की कुदरत रखता है। मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है अगर आपका ईमान है। कहता है अगर ईमान से मांगो और कुछ शक ना करो तो वो तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया। अब मैदान जंग में हो भाई, मेरे भाई मेरी बहन, आप मैदान जंग में हो तो मैदान जंग में आपको भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जीत के हम ही आएंगे वापस। हालेलुया। जीत के हम भी वापस आएंगे, क्योंकि हमें इसीलिए आपकी जब आपको बनाया गया था, जब आपको खुदा ने खलक किया था, तो आपकी चीज में, आपके डीएनए में, आपके खून में उसने ये जीत पहले से रख दी है कि आप कभी भी नहीं हार सकते। आप सदा के लिए जीते हुए हो। आमीन। और फिर भी हमें फाइट करनी है, और फिर भी हमें लड़ना है, फिर भी हमें ईमान रखना है कि मेरा खुदा मेरे साथ साथ है। आमीन। हमारा खुदा हमारे साथ है। अजीजों, आपका खुदा आपके साथ है। आपकी हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख में, हर मुसीबत में, मैं आपको बताऊं, आप सो भी जाते हैं, आपका खुदा नहीं सोता, वो आपके साथ होता है। इससे बड़ी क्या आपको गवाही दी जा सके कि आप सो जाते हैं, आपका खुदा जाग रहता है। आपका कारोबार, आप अपने कारोबार के साथ रहते हो या घर में साथ लेके आते हो? आपका कारोबार भाई पड़ा होता है किसी जंगल में, किसी मार्केट में, किसी रोड पे, कहीं ना कहीं आपका कारोबार उधर पड़ा है। आप अपने घर आ गए, खुदा आपके कारोबार की हिफाजत कर रहे हैं। अपने फरिश्ते भेजकर, अपने एजेंट्स भेजकर, वो फरिश्ते भेजता है और चोरों के रास्ते चेंज कर देता है। आपका खुदा है भाई, ईमान रखो, खुदा ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे। आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी नहीं है कि हम घर बैठे अपनी दुकान की हिफाजत कर सके, अपनी फैक्ट्री की हिफाजत कर सके, अपनी कंपनी की, अपनी गाड़ी की। आपकी गाड़ियां आपके घर के बाहर होंगी या किसी और जगह पे खड़ी होंगी, खुदा उनकी हिफाजत कर रहा है। क्या चाहिए आपको? खुदा कर रही है सब कुछ। आपको सुबह उठते हो, आपको सब कुछ प्रोवाइड। इससे पहले आप निकलो कारोबार के लिए, खुदा ने बंदे सेट किए होते हैं कि आपके पास पहुंचेंगे। लोग आपको खुद काम करते हैं, आपको वसीले बन जाते हैं लोग। ये खुदा कर रहा है भाई आपके लिए। और हम अब भी उस पर ईमान न रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद कहीं गलती कर रहे हैं। हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं ये खुदा कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहा वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं हो रहा और उसके लिए क्या जरूरी है। आपके पास बहुत कुछ ऐसा, आपको मैं बहुत क्लियर से बता रहा हूं। अब ये बड़ा अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपका एक ही मैदान जंग है, वो दुआ। और उस दुआ में अगर ईमान से नहीं बैठे हुए, आपने क्या मांगा उससे? आपने क्या मांगा उससे? कुछ भी नहीं मांगा।
آپ نے اس سے اپنے بچوں کی سلامتی مانگی، ایمان رکھو کہ بچے سلامت رہیں گے. اپنے چرچ کے لیے دعا مانگی کہ خدا یہ چرچ گرو کرے، چرچ بڑھے، ایمان رکھنا یہ چرچ بڑھے گا. اگر اپنے لیے اپنی خدمت کے لیے دعا کرو تو یہ ایمان سے دعا کرو، بڑے فیض کے ساتھ دعا کرو کہ نہیں آپ کی خدمت گرو کر رہی ہے، آپ کی خدمت بڑھ رہی ہے، یہ ایمان رکھ کے دعا کرو. لیکن اگر آپ رٹے کے ساتھ دعا کرو تو پھر نہیں، آپ کو بڑے ایمان سے دعا کرنی ہے. اور اس ایمان سے دعا کرنی ہے جیسے آپ مانگ رہے ہو، اور جس سے مانگ رہے نا وہ بالکل آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہے. اگر آپ بیٹھے ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کبھی اس امید سے دعا کی ہے کہ آپ جس مذبح پہ آپ بیٹھے وہاں پہ خدا بھی موجود ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں. اب آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ تو اکیلے دعا کر رہے ہو. اب کلام خدا میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا جا اپنی کوٹری میں اور دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے پشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اس کا مطلب اکیلے کے لیے لکھا ہے کہ وہ جائے اور پشیدگی میں اکیلے میں دعا کرے. اپنی پشیدگی کا خیال رکھو ذرا تھوڑا سا. نوجوان، بڑے، بزرگ، بچے سب اپنی پشیدگی کا خیال رکھو. جب آپ بند کمرے میں ہوتے ہو، اکیلے ہوتے ہو، تو وہاں پہ ہمیں بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. اور وہاں پہ جب ہم دعا کریں گے، میں آپ کو بتاؤں آپ کا خدا فرماتا ہے اگر تم پشیدگی میں دعا کرو گے تو اس کا جو رزلٹ ہوگا نا وہ اوپن ملے گا. لوگ چھپ کے کچھ کرتے ہیں غلط، جب وہ پتہ چلتا ہے تو رزلٹ کدھر آتا ہے؟ چھپ کے. میں بتاؤں آپ دعا بھی چھپ کے کریں گے اس کا رزلٹ بازار میں آئے گا. اگر غلط کام چھپ کے کریں گے اس کا رزلٹ بھی چھپ کے نہیں آئے گا، باہر بازار میں آئے گا، گلی میں آئے گا، محلے میں آئے گا. اب آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے اپنی پشیدگی میں غلط کام کرنے ہیں یا خدا سے ایمان سے دعا کرنی ہے. جب آپ پشیدگی میں دعا کریں گے ایمان کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں بائبل میں لکھا ہوا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا رزلٹ بازار میں آنے والا ہے. آپ کا رزلٹ محلوں میں ہوگا، آپ کا رزلٹ شہروں میں ہوگا. لیکن کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ کو بتاؤں آپ بہت تھوڑی پریئر کرتے ہو. میں اگر ابھی پوچھوں تو بہت کم ہاتھ اٹھیں گے جو 1 گھنٹہ پریئر کرتے ہوں. صرف 1 گھنٹہ. افریقہ میں پتہ کتنی دیر لوگ پریئر کرتے ہیں. میں حیران تھا وہاں پہ ایماندار جو ہے یعنی جو کلیسیا ہے وہ 8 گھنٹے دعا کرتی ہے. کلیسیا کے لوگ مطلب آپ لوگ کتنے کیوں بھلا وہ 8 گھنٹے کرتے ہیں؟ انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے. 24 گھنٹے یعنی سال کے 24 گھنٹے یعنی 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دنوں میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے. کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ ابھی کوئی مار جائے گا، ابھی کوئی مار جائے گا. روڈ پہ جا رہے ہیں تب بھی ڈر رہے ہیں، اپنے گھر میں تب بھی ڈر رہے ہیں، جنگل میں تب بھی جدھر مرضی ہو افریقہ کے لوگ ان کو ڈر ہوتا ہے. اور 80% سے زیادہ یعنی 80% سے زیادہ وہاں پہ کرسچن، انہیں ڈر رہتا ہے کوئی نہ کوئی مار جائے گا. اور اس ڈر سے وہ کہتے ہیں دعا کر لو وہ بہتر ہے. ہمیں ڈر نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں پتہ ہے صبح کاروبار پہ ٹھیک ہے لگا ہوا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، ہاسپٹل قریب ہی ہے، سب کچھ قریب ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اوکے ہے. ہمارے کاروبار بھی ٹھیک ہے، ہماری سیلریاں بھی ٹھیک ہے، ہمارے پاس کھانے کو بھی افراد ہیں، اتنا کھانے پہ ہے کہ ہر فیملی ہو سکتا ہے 2 3 کٹورے سالن گراتے ہیں. ہے نا ایسا؟ ان کے پاس کچھ نہیں نہ تو کھانے ہو سکتا ہے جتنا کھانا آپ پورے سال میں آپ کھاتے اور ضائع کرتے ہو، ایک بندہ وہاں پہ پوری زندگی میں اتنا کھانا وہ کھاتا ہوگا. انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے کبھی بھی مر جائے گی.
इसलिए वो इतनी प्रेयर करते हैं। मैं ये कहूंगा कि जितने ईमानदार वहां पे प्रेयर करते हैं उतनी प्रेयर हम भी नहीं करते। सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ सेट है। और अब हमें इस जुए को, इस बंधन को ईमान से तोड़ना है कि नहीं खुदावन अब हम ज्यादा प्रेयर करेंगे। मैं इसीलिए इस टॉपिक को लेके बैठा हूं ताकि हम सीख सकें कि दुआ एक जंग है और उस जंग में सब ये हथियार की जरूरी है, ईमान। और उनका ईमान इसलिए वो दुआ करते हैं कि दुआ में रहेंगे तो बचे रहेंगे, दुआ में रहेंगे तो जिंदगी है, दुआ में रहेंगे सलामती है, दुआ में रहेंगे तो सब कुछ है। और इसी वजह से वो बढ़ते जा रहे हैं, अफ्रीका आगे निकलता जा रहा है, बेदारी के लिहाज से, खुशहाली के लिहाज से वो आगे निकलता जा रहा है। और जहां पे सब कुछ है, अब हम समझते हैं अमेरिका हमसे बहुत आगे, बहुत पीछे है। वहां पे तो, यहाँ पे अगर आपकी कोई शॉप है तो आप तो रात को फोन कर दे, 1 घंटा बंद किया, उसके बाद भाई जी वो सामान लेना था, आप फौरी तौर पर निकलेंगे और उसने बोल दे 25,000 का सामान लेना है, ये तो पूरे महीने में नहीं बिकता। और वहां पे गोरे ऐसा नहीं करते, गोरे ऐसा 5 बजे दुकान बंद, मतलब बंद। आप $10 लाख भी रखो तो वो नहीं खोलेगा, कुछ भी हो जाए वो खोलेगा नहीं खोलेगा। और इसी वजह से वो पीछे जा रहे हैं। सब कुछ है, सब कुछ सेट है, कोई हमसे भी हम तो, मैं समझता हूं आप अपने कितना कंफर्टेबल समझ रहे हैं, सुबह उठे, काम पे गए, सब कुछ चल रहा है। उनके पास आपसे वो 100 साल, वो आपसे इतनी सहूलतों में जो आपके पास है, इन सहूलतों से भी वो 100 साल आगे हैं। और रूहानी तौर पर वो हमसे 100 साल पीछे चले चुके हैं। इस वक्त यूरोप की ये हाल हो चुकी है। और मैं बताऊं आपको, कलीसिया उठने की जरूरत है। अगर हम ना उठे और हमें ईमान से ये दुआएं करनी है कि मेरे मुल्क में बेदारी आएगी, जो मैं दुआएं कर रहा हूं, और यहां से बेदारी फिर दोबारा यूरोप जाएगी। क्या हम इस तरह से दुआ कर सकते हैं? हाँ, असली तो अपने वास्ते दुआ नहीं करते, तो पाकिस्तान वास्ते कितनी दुआ करनी? इधर हालत खराब है, इधर तो एक चर्च दूसरे चर्च के लिए दुआ नहीं करता, बल्कि वो भी फोन के चक्कर से 5 साल तक आ गया, चर्च बड़ी कर लिया, है ना जी, काल में ऐसे ही। तो हम किस तरह से दुआ कर पाएंगे? खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान के तमाम चर्चेज में बेदारी आ जाए। जब बेदारी आएगी, मतलब तमाम चर्चेज में, मतलब जब आपके हमसाए चर्च में बेदारी आएगी, आपके इस साइड पे जो हमसाया चर्च है उसमें बेदारी आएगी, तो वो चर्च बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा कहां से होगा? लोग उसमें आएंगे। लोग कहां से आएंगे? हम तो उनके लोग खींच रहे हैं, वो हमारे खींच रहे हैं, हम उनके खींच रहे हैं, ये खींची चल रही है। इसका मतलब हमारा ईमान खुदा के ऊपर नहीं है, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है, खुदा लोग पढ़ाएगा। इसका मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब पासवान क्या कर रहे हैं? अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपने इल्म का मुजाहरा करें कि नहीं, मैं इल्म सुना के इनको कलाम सुना के देखा ਤੁਹਾਡੇ तो पाल तो पता कलाम में ऐसा ना, ये चल रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा पे भरोसा होना चाहिए। खुदा पे भरोसा रखो, खुदा बढ़ाएगा। आमीन। एक जगह पे मीटिंग थी, तो वहां पे कोई कम से कम 15 से 20 पासवान आए हुए थे। तो मुझसे कुछ पासवानों ने पूछा कि, क्योंकि मैं वहां पे सब जितने भी पासवान थे उन सब से छोटे एज का मैं ही था, तो मुझसे 2-4 खालमों ने पूछा आपकी चर्च के कितने लोग हैं, कैसे मैं सबको बता रहा हूं। वो हैरान हो रहे थे, यार ये कैसे है? वो हैरान थे, इतने मेंबर्स, इतने लोग, इतनी जगह में, ये इतने थोड़े सालों में कैसे? मैंने कहा ये खुदा कर रहा है, मैं निकम्मा सा उसका नौकर हूं। अगर मैं कर रहा हूं तो ये 2 दिनों के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ये खुदा कर रहा है तो ये सालों क्या अब्दुल आबाद तक रहेंगे।
हमें खुदा जब करता है, जब इंसान कहता है कि ये मैंने किया, इसका मतलब हमारा भरोसा खुदा से हट जाता है। मैंने बनाया, खुदा ने हमें ब्लेस किया और ये हमने बनाया, इस तरह से बोलो। अगर खुदा ने आपको गाड़ी दी है, खुदा ने हमें बरकत दी और हमने गाड़ी खरीदी, ये खुदा को जलाल मिलेगा। आमीन। इसका मतलब हमें भरोसा रखना चाहिए खुदा पे। खुदा आपको गाड़ी दे रहा है, खुदा आपको बाइक दे रहा है, खुदा आपको घर दे रहा है, खुदा आपको बच्चे दे रहा है, खुदा आपको कारोबार दे रहा है, ये फेथ रखो। आमीन। ये ईमान रखो। खुदा आपको मजबूत कर रहा है, खुदा आपको बढ़ा रहा है, खुदा आपको फलवंत कर रहा है, खुदा आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहा है, खुदा आपकी बीमारी को दूर कर चुका है, ये ईमान रखो। आमीन। हालेलुया। ये ईमान रखो। जब ईमान अंदर एक्टिवेट होगा ना, अगर आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं ना आते, ताकि गल नहीं हो सकती तेरे रिश्तेदार में। और ईमान एक सिग्नल की तरह काम करता है। देखा, इब्राहिम खुदा पे ईमान लाया और आज दुनिया कहती है ईमानदार होगा बाप। इब्राहिम ईमानदारों का, तो उसका ईमान देख लो और अपना ईमान देख लो। हमें भरोसा रखने खुदा पे, ये खुदा मेरे साथ है। गीत तो हर गाने, मैं जिथे जावा यीशु मेरे, कि खाली गाने हैं, मैं जिथे जावा यीशु मेरे, भाई उठे कमा यीशु नाल नहीं जाता। गलत कामों में खुदा हमारे साथ नहीं है। एक बंदा, एक लड़का किसी को मिलने गया हुआ है, यीशु उसके साथ नहीं है। एक बंदा चोरी करने गया है, उस चोर के साथ खुदा नहीं है। पर वो क्या है, खुदा मदद करे, है ना? कह रहा है कुछ ना कुछ कहते ही होगा, मुझे क्या पता, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो हमें इस बात को समझना है कि आपको भरोसा रखना है खुदा के। जब दुआ में बैठते हो तो बड़े ईमान के बोल बोला करो। मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है, मेरा बेटा पास्टर बन चुका है, हमें मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल चुका है, मेरे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल चुका है, मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल चुकी है। बड़े बड़े अल्फाज अपने बच्चों के लिए बोलना शुरू करो। कहां पे? दुआ में। और वो मैदान जंग है। हमें खुदा आपको बरकत दे। दुआ करते हैं अपनी